Good morning, all of you. We are going to start or continue chapter electoral politics. The children who have joined online, can you see the book on the screen? Yes, ma'am. Children, Yes, can you ma'am. see? Okay. So one topic was left at the end, that is challenges to elections in India. Election campaigning we have done yesterday, polling and counting of vote also. Then last topic was what makes elections in India democratic. Now, after the completion of the chapter, just remind me, I will brief you about the examination, half yearly examination. All right? और at the beginning only मैं आपको बता देती हूँ, आपका हाफ ईयरली का सिलेबस मैंने आपको I have posted on the WhatsApp. Yes or no? How many you have seen the syllabus on the WhatsApp? Raise your hand. अंकित नेगी, you are lost. आपने नहीं देखा है, कुछ होश में नहीं है, और आप ऐसी पेपर देने में आ जाओगे. अंजलि सकलानी, क्यों? The children who are online, you have seen the syllabus I have sent on the WhatsApp. Yes, ma'am. Okay. नहीं देखा है तो it's your Yes, ma'am. responsibility. All of you go through the syllabus. I have sent the screenshot of the chapters. Total, I think 7 chapters are coming. One is from history and 2 each from civics, economics and geography. यही है ना syllabus? मैंने आपको बताया था कल. ये रहा. Yes, ma'am. First chapter is the French Revolution. Second chapter, only one chapter is coming from history, that is French Revolution. Then India, size and location from geography, physical features of India from geography. Then what is democracy, why democracy from geography, sorry, civics. Then constitutional design from civics. Then story of village Palampur and people as resource. So I have sent all the the screenshot of the chapters on the WhatsApp. You can see, you can go through the syllabus very carefully. 7 chapters are there, and then I have sent the screenshot of this map. All right. So total 40 marks paper will come. All right, 40 marks paper जो है आपका होगा. So ये आप बहुत ही केयरफुली अभी से आप लोग जो है तैयारी से कर लीजिए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट पेपर है आपका एंड इट विल बी ऑफलाइन. So you have to come to the school to give the paper, so it is going to be more difficult because आप कहीं से देख नहीं सकते हो, अनलाइक जो आप लोग ऑनलाइन क्या करते थे. ठीक है. हाँ, एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू इससे पहले आपका हुआ है ना PT1, उसमें शायद कुछ डिस्क्रिप्टिव दिए गए थे, बट दिस टाइम देयर विल बी नो डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस. टोटल 40 के 40 आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड रीजनिंग एंड एजर्शन बेस्ड. तो रीजनिंग एंड एजर्शन बेस्ड क्या होता है आपको पता है, ये आपने इससे पहले है ना. तो रीजनिंग एंड एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे. सो इट इज क्लियर. व्हाट इज द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन? 9th का 25 को है. 4 तारीख को है. आई एम आस्किंग सोशल साइंस पेपर SST कब है? 4 सितंबर को है ना, 4 सितंबर को है. तो 4 अक्टूबर मतलब समझ गए ना, ये पीछे मत चले जाना कि अगले साल देंगे 4 सितंबर को. सो इट इज ऑन 4th ऑफ अक्टूबर और सारे बच्चों को पेपर देना है. कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, कोई घर पे नहीं बैठेगा, हर हाल में आपको पेपर देने आना है. अगर आप नहीं पेपर दे रहे इसका मतलब आपको स्कूल अटेंड नहीं करना है. ऑलराइट, सो इट इज क्लियर. I have I have told you about the syllabus, the date of the examination and the pattern of examination. Approximately 18 to 20 questions will be of MCQ, then 7 to 8 questions of reasoning and assertion, and then case study based questions. तो वो जो पैटर्न है वो मैं आपको एक और बार ब्रीफ कर दूंगी, बट मैंने आपको इतना बता दिया है. हाँ, अभी मैंने क्या बोला है, टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? अभी तो मैंने उसके ऊपर ही तो बोला कि ऑफलाइन होगा, स्कूल में आना है तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी से मेहनत कर लो, पढ़ लो. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक. अब मेरा इतना बोलने के बाद भी ना अभी 10 बच्चे फोन कर मैसेज करेंगे, अलग अलग से ही मैसेज करेंगे कि कब है पेपर, तो क्या है फैमिली का सिलेबस, तो क्या है पैटर्न.
तो अब मैं इसके बाद कोई रिप्लाई करूंगी नहीं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सुन लिया है, जो ऑनलाइन बच्चे उन्होंने भी सुन लिया है। नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? We get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and TV reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. अच्छा, ये सब मैंने आपको बता दिया था। सो व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? इंडिया में जो चुनाव होते हैं वो हाउ दे आर मोर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? हाउ दे आर बेटर देन द इलेक्शंस इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो जब आपके इलेक्शंस फेयर होते हैं, सही तरीके से करवाए जाते हैं, तो उन इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अगर उसमें कुछ गलत होता है, माल प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, गलत कुछ तरीका यूज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन। So democratic is the correct way of election and undemocratic is the wrong way of elections. So basically, many times you will see that in the news reports that there are number of allegations जो पार्टी दूसरे के ऊपर लगाती है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिसयूज हुआ है ना, ये सारी चीजें। तो हमारे देश में ऐसा कम होता है बिकॉज हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे इंतजाम किए हमारे संविधान ने और हमारे जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे इलेक्शंस बहुत ही प्रॉपर वे में होते हैं, डेमोक्रेटिक वे में होते हैं। लाइक फर्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। लाइक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मीन्स हमारे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे क्या होते हैं? चुनाव आयोग होता है, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है एट द नेशनल लेवल, उसका चेयरमैन कौन होता है? CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड वंस अपॉइंटेड his removal is nearly impossible, ठीक है। तो जो भी CEC होता है, जब उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो उसका टेन्योर होता है 5 से 6 साल का, वो उस टेन्योर को पूरा करते हैं और आराम से मतलब नौकरी करते, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इट इज स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब कि ना ये इसको 3 ऑर्गन्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के ही साथ इसको ऐड नहीं किया गया है। इसको इलेक्शन कमीशन को अलग से बनाया गया है और इनका गवर्नमेंट इसको जो है सप्रेस नहीं कर सकती है। अगर कोई मिनिस्टर चाहे कि हम इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से चलाएं, या कोई सरकार चाहे कि हम इलेक्शन कमीशन को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। Our election commission is totally independent and they work in a very fair manner and without coming in coming in any क्या बोलते हैं उसको, दबाव में आए बिना, ठीक है ना, किसी भी दबाव में आए बिना वो काम करती है। इसलिए हमारी इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्शन कमीशन है, बिकॉज इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। क्योंकि इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो इसके ऑफिसर्स होते हैं, इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है और ये खुलकर काम करते हैं। अगर इनके ऊपर ये खतरा रहे कि अच्छा इनको हटा देंगे, हम इनका ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह का अगर आपके ऊपर खतरा रहे, तो क्या आप अपना काम सही से कर पाओगे? ठीक है ना। इसलिए इंडिपेंडेंट कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, ताकि वो बिना किसी दबाव में आए हुए अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए। नहीं तो अगर इलेक्शन कमीशन को हम सरकार के साथ काम करने के लग जाए, तो पूरे के पूरे मिनिस्टर्स क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन को दबा देंगे और उनको अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं, उनसे काम डायरेक्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारे ISPs होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना। अगर उन्होंने मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, बहुत बार क्या होता है, उनका ट्रांसफर हो जाता है। कुछ ऐसी करप्ट चीजें होती हैं। नाउ हमारे देखते हैं कि EC का क्या रोल होता है। EC टेक्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, वो चुनाव कब करवाना है, उसकी डेट जो है डिसाइड करना, और कब खत्म होगा, सब कुछ कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो डेट को डिसाइड करना कि स्टार्ट कब होगा और खत्म कब होगा, सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। देन इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट को जो है इंप्लीमेंट करता है एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। तो इलेक्शन कमीशन, कल मैंने आपकी क्लास में बताया था कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इलेक्शंस में। तो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर पार्टी और हर कैंडिडेट को फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस। और ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और हर पार्टी कैंडिडेट को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर कोई वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन उसको पनिश कर सकता है। During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials, ठीक है। अब इलेक्शन के टाइम
जो है सरकार की पावर बिल्कुल कम हो जाती है और इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो सरकार को जो है कुछ गाइडलाइंस दे सकता है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी चीजें इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट का पैसा आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, इवन द रूलिंग पार्टी फॉर देयर इलेक्शन कैंपेनिंग। मान लो भी एनडीए की गवर्नमेंट है सेंटर पे और मान लो 2 साल बाद चुनाव होंगे, तो लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट भले ही है बट इलेक्शन में उनको खुद की अपनी पार्टी के पैसे जो है एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, वो सरकार की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि उस समय उसको सरकार नहीं माना जाता है। और सरकार जो है माना भी जाता है तो वो अपनी जो है खुद की चीजें यूज करेंगे, लेकिन जो सरकारी चीजें हैं उससे इस्तेमाल करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लाइक वो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में वो जो है सरकारी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं या सरकारी हेलीकॉप्टर सरकार के नाम पे हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, या फिर बसेस आपने कर लिया, या सरकारी खजाने से पैसा निकाल के आप रैलीज में इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप जो है जो ऑफिसर्स हैं उनको आप अपनी रैली में लगा दे रहे हो, तो ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड हैं, ये अगेंस्ट जो है हमारे इलेक्शन के रूल्स के अगेंस्ट में। देन व्हेन वन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। और जो भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, जो भी आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं, उनको इलेक्शन के टाइम ड्यूटी पे लगाया जाता है ना, या जो हमारे पुलिस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, हमारे सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ, जो भी हमारे जवान होते हैं, जब उनको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाता है तो फिर वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं होते, वो किसके ऑफिसर्स बन जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के। तो जब तक वो 1 महीने का ड्यूरेशन होता है, जब तक इलेक्शन नहीं चलते हैं, खत्म नहीं जाते, तब तक ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स दे वर्क अंडर, जो इनको भी रिक्रूट किया जाता है कि इलेक्शन ड्यूटी में आपकी ड्यूटी लगती तो नहीं लगती है, तो जिसकी लगती है दे विल वर्क एज इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स एंड नॉट एज द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो गवर्नमेंट उनसे काम नहीं करवा सकती, एक बार उनका नाम चला गया इलेक्शन कमीशन के पास, भाई ये ड्यूटी में लगे हुए, तो फिर वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हैं कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है इट इज वेरी पावरफुल। In last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. और बहुत बार आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है डांट देता है, जो है स्टेटमेंट डिक्लेयर कर देता है और गवर्नमेंट को भी फटका लगाता है ना। जिसमें मैंने आपसे कहा था पिछली बार की जो आपके कुछ 1-2 यूपी के जो सीएम थे और कोई 1-2 लोग थे, तो उन लोगों को बैन कर दिया गया था रैली से, कहा गया था कि अब आप आगे कोई रैली नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने जो है गलत चीजें इलेक्शन में यूज की थी। तो ईच एंड एवरी पार्टी एंड कैंडिडेट हैज टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना, बूथ बनाना, ये सब किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का। तो हमारी पहली क्या चीज है, तो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? फर्स्ट क्या चीज है बताइए? जो बच्चे ऑनलाइन है, ये जो ऑफलाइन बैठे हैं उनको तो कोई मुझे लग रहा है इंटरेस्ट ही नहीं है, बताइए। मैंने अभी तो इतना पूरा लेक्चर सुना दिया, पूरा पीरियड। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ये हमारा पहला है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट फीचर विच मेक्स आवर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। जब भी हमारे भारत में चुनाव होते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है टर्न आउट करते हैं फॉर वोटिंग पर्पस, ठीक है, और बहुत खुश होते हैं, मतलब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं कि हमें इलेक्शंस में जो है वोट डालने जाना है। ऐसा नहीं कि कौन जाए वोट डालने, बहुत लोग होते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है हमारे इंडिया में वोट करने के लिए जाते हैं। People's participation in election is usually measured by voters turnout. Turnout indicates the percentage of eligible voters who actually cast their vote. ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि 18 से ऊपर जो भी लोग होते हैं वो वोटर्स होते हैं और उस सबका नाम वोटर आईडी कार्ड में होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम बहुत लोग वोट डालने नहीं आते, ठीक है ना। आपने सुना न्यूज़ में कभी आता है कि भाई इस क्षेत्र से 57% वोटिंग हुई है या इस बार 61% वोटिंग हुई है, तो मतलब लगभग 50, 60, 70 के आसपास ही पहुंचता है, 70 से ऊपर तो बहुत अच्छा परसेंटेज हो जाता है। तो इसीलिए जो है वोटिंग करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. इंडिया में क्या होता है कि जो जितना गरीब होता है,
अनपढ़ होता है और अनप्रिविलेज होता है, वो ज़्यादा वोट करते हैं। जैसे आप गाँव में जाओगे ना, तो महिलाएँ ज़्यादा वोट करने जाएँगी, जो गाँव के लोग होते हैं, किसान, वो ज़्यादा वोट करने जाएँगे, गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा वोट करने जाएगी, और जो रिच होते हैं, वो अपने घरों में बैठे रह रहे, हमें क्या करना है वोट करके। तो दिस इज़ रॉन्ग थिंग, दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका, यूके की, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ही जो है ज़्यादा वोट करने जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में इसका उल्टा होता है, हमारे इंडिया में जो पुअर होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो ज़्यादा वोट करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो कम वोट करते हैं। Next, common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. हमारे देश में क्या है कि जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है, ठीक है ना, जो रिच पॉपुलेशन है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी सरकार है, हमें क्या, हमारे पास उतने पैसे बने हुए हैं। लेकिन जो कॉमन लोग, जैसे हम लोग हैं, लोग जैसे सरकारी काम करते हैं, तो हमें पता है अच्छा बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सरकारी लोगों के लिए ऐसा काम करेगी, अगर कांग्रेस आएगी तो सरकारी लोगों के लिए ये पॉलिसीज लेके आएगी, हमारा जो डीए है वो देगी तो हमें ये करेगी, है ना, हमारी पेंशन दे देगी, ऐसे करके। तो हम लोग क्या है, सरकार से रिलेट करते हैं और हम लोग वोटिंग करने ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सरकार अगर बदलेगी, हमारे मन मुताबिक सरकार आएगी, तो हमें उससे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। या जो गरीब आदमी है, या जो आपका किसान है, या जो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, तो ये लोग अपने आप को ज्यादा रिलेट करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा जो है वोट इम्पोर्टेंट है, और हमारे वोट करने से जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे काफी प्रभाव पड़ेगा और हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है पॉलिसीज बन सकती हैं, इसलिए मिडिल क्लास भी वोट करता है। एंड देन लास्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। और धीरे धीरे जो क्या है, कैंपेनिंग भी बढ़ रही है, मीडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है, तो हमारे देश में जो है वोटर्स धीरे धीरे ज्यादा टर्न आउट हो रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। देन लास्ट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो भी इलेक्शन का आउटकम होता है उसे लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। One final test of the free and fairness of election has the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose election. तो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक तीन चीजें बनाती हैं। एक हो गया इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा मैंने आपको बताया पीपल्स पार्टिसिपेशन। जितने ज्यादा लोग आपके देश में, कंट्री में वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज होगा, इसका मतलब उतना ही आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, लोग खुश हैं, लोग मोटिवेटेड हैं और वो इलेक्शन करने आ रहे हैं, ठीक है ना। जब हमें लगता है कि हमारे वोट की वैल्यू है, तभी तो हम वोट करने जाते हैं ना, तभी ज्यादा लोग जाएंगे। अब हमें पता है हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी को भी वोट दें, हमारे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बनेगी नहीं, तो फिर हम वोट करने नहीं जाते। इसका मतलब अगर आपके देश में मैक्सिमम लोग वोट करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने वोट की वैल्यू समझते हैं, और वो सरकार में, और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह की है कि लोगों को जो है मोटिवेट करती है वोटिंग करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन आउटकम क्या होता है, चुनाव का नतीजा। अब चुनाव का नतीजा कैसा है, ये भी आपको डिसाइड करता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में करवाए गए हैं कि नहीं करवाए गए, ठीक है। अगर आपको पता है हर इलेक्शन से पहले की एक चीज समझ में आ जाती है कि ये पार्टी जीतने के इसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। अब कहा नहीं जा सकता हर सिचुएशन में, लेकिन मान लो एक ही पार्टी हर साल इलेक्शन जीतती रही, मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शन जीतती रही, तो क्या उस केस में वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन हो रहा है और उसका जो नतीजा है वो ऐसा है कि दूसरी पार्टी को भी फेयर चांस मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी कंट्री में इलेक्शन जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। अब रिजल्ट जो चुनाव का आउटकम होता है वो भी एक जो है शो करता है कि आपकी कंट्री में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अभी 2 इलेक्शन से हमें पता था कि जो एनडीए पार्टी है वो थोड़ा सा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, पता था ना हमें, तो जीत भी गई। तो इसका मतलब ये जो चुनाव का नतीजा निकला वो क्या है, फ्री एंड फेयर है, ठीक है। मान लो अगले इलेक्शंस में क्या हुआ कि हमें ये लगा कि एनडीए पार्टी के जीतने के चांसेस कम है और कांग्रेस पार्टी या आप पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, लेकिन फिर क्या हुआ, आप नहीं जीती, कांग्रेस नहीं जीती और फिर से एनडीए आ गई। उस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, कि जब हमें लगता है कि ये पार्टी जीत सकती है, इसके जो है वोटर्स ज्यादा लगते हैं, एक थोड़ा सा समझ में आ जाती चीजें,
इलेक्शन का आउटकम समझ में आने लग जाता है। लेकिन वैसा नहीं होता है जब, तब हमें क्या लगता है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए। ठीक है, वैसे हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई राज्यों में बहुत पहले 20 साल पहले 15 साल पहले ऐसा होता था, जब बैलेट बॉक्सेस चलते थे ना, जो थप्पा लगाते थे और फिर करते थे। बहुत जगह क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि वो बैलेट बॉक्सेस लेके भाग जाते थे। जो पार्टीज के जो होते ना मसलमैन, मतलब जो गुंडे होते थे, वो क्या करते थे, बैलेट बॉक्सेस लेके भागते थे, नदी में फेंक देते थे और फिर खुद नया पर्ची लेके उसमें अपनी पार्टी का स्टैंप लगा के डाल देते थे। तो एक ही पार्टी जीतती रहती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुनाव के नतीजे अगर सही हैं, जितना पब्लिक ने जिसको वोट किया है, अगर वो जीत गई पार्टी, तब तो आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। लेकिन मेजोरिटी ने जिसको वोट किया, वो ना जीतकर समहाउ कुछ गलत किया, कुछ गलत हुआ और कोई और जीत गया जिसको वोटिंग मिली भी नहीं है ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। तो चुनाव के नतीजे भी डिक्लेयर करते हैं कि हम वोट देकर आए किसी और को, जीत गया कोई और। ठीक है, The outcome of India's elections speaks for itself. The ruling party routinely lose elections in India. हमारे भारत में जो भी सरकार होती है, उसका तय होता है कि 5 साल 10 साल बाद उसको जाना ही होता है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको पता है कि अगर हमने काम सही से नहीं किया तो हम अगले इलेक्शन में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अगर रूलिंग पार्टी के अंदर ये डर है कि हम चेंज जाएंगे, तो ये है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस भी डेमोक्रेटिक है और हमारे देश में इलेक्शंस को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है। लेकिन जैसे चाइना जैसा देश है, वहाँ पे क्या है, जो रूलिंग पार्टी उसको पता है हम कभी जाने वाले ही नहीं है, कि वहाँ पे एक ही पार्टी है और ले देके वही चुनाव जीतते हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन वहाँ पे डेमोक्रेटिक है ही नहीं। जब एक ही पार्टी को आपको वोट देना है तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीतती है वहाँ पे हर साल, 50 साल 70 सालों से वही अपना जो है सरकार बना रही है। देन हमारे इंडिया में देखो, अब पिछले 10 साल किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, अंडर मनमोहन सिंह। फिर चेंज हो गया, फिर क्या गई, 10 साल एनडीए की है। अब क्या पता अगले इलेक्शंस में बदल जाए। ठीक है, तो हमारी कंट्री में हमेशा ही चांसेस होते हैं कि दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है और रूलिंग पार्टी हट सकती है। In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose election. हमारे भारत में जब भी चुनाव होता है 5 साल बाद, तो जो हमारे विधानसभा के MLAs होते हैं या जो हमारे लोकसभा के MPs होते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा MP क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो अभी MP चल रहे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जो हमारे MLAs हैं, जब अगला चुनाव होगा ना, उसमें से कई हार जाएंगे और उनकी जगह नए आ जाते हैं। तो ये भी रिशफलिंग होती रहती है। Next, candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ मनी पावर एंड मसल पावर यूज होती है। मसल पावर समझते हो ना, समझिए ना। और मनी पावर क्या होता है? उन लोगों को लिया जाता है जो कि पैसे वाले होते हैं, भले इनको चुनाव में आए कुछ ना आए। देखा कभी कभी जो फिल्म स्टार्स को काम दे देते हैं, टिकट दे देते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको टिकट दे देते हैं। लेकिन बहुत बार ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्शंस में हार जाते हैं। तो पब्लिक भी समझती है कि ये क्रिमिनल है या फिर इसके ये मसल पावर है, गुंडा है, तो इसको वो वोट नहीं करते। ठीक है, bearing for very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. और आज तक भारत में जो भी इलेक्शंस हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोगों ने उसके वर्डिक्ट को एक्सेप्ट ना किया हो। हमेशा जो भी चुनाव के नतीजे आते हैं, पब्लिक उससे सेटिस्फाई रहती है, क्योंकि हमेशा चुनाव के नतीजे उसी तरह से आए हैं जिस तरह से पब्लिक वोट करती है। तो हमारे भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने सोचा कुछ और जो है सरकार किसी और की बन गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नाउ चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे भारत में जो भी स्वतंत्र चुनाव होते हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली प्रॉब्लम क्या है? Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. ठीक है, तो वो पार्टीज, जैसे हमारे इंडिया में कुछ बड़ी पार्टीज हैं, there are certain big parties and number of small parties. तो जो बिग पार्टीज होती हैं, लार्ज पार्टीज होती हैं, established पार्टीज होती हैं, they enjoy certain privilege and power over the small parties. अब आप देखिए, आप पार्टी है, आप पार्टी अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, ठीक है ना, इट्स अ गुड पार्टी। बट क्योंकि ये न्यू पार्टी है और इसके ज़्यादा मेंबर जो है, मतलब अभी इसका एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट स्टेट्स में नहीं हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कांग्रेस एंड बीजेपी, ये बहुत पुरानी पार्टीज हैं, दे आर ओल्ड पार्टीज, और ये अपना रूट बना चुका है पूरे भारत में।
तो इन पार्टीज का अनड्यू एडवांटेज होता है ओवर द स्मॉल पार्टीज। स्मॉल पार्टीज अच्छी भी होती हैं, वो अच्छे से काम भी करना चाहें, लेकिन ये जो बड़ी पार्टीज होती है ना, इनका अपने एडवांटेज होता है क्योंकि इनके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं और इनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं। तो यही है कि जो बड़े पार्टीज होती है जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, उनके विक्ट्री के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इलेक्शन में देखिए, या तो कांग्रेस जीतती है या तो बीजेपी जीतती है, ये जो दो पार्टीज जीतती हैं। In some parts of country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from the major parties. और बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टीज जो होती हैं वो किसको टिकट दे देती हैं चुनाव में? उन लोगों को जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि भाई इसका क्रिमिनल कनेक्शन है, ये बाहुबली है उस एरिया का, ये वहाँ पे बहुत मतलब होता है ना, उसका मसल पावर बहुत है वहाँ पे किसी भी एरिया में, लेकिन पार्टीज फिर भी उनको इंटेंशनली टिकट देती हैं, चुनाव के लिए टिकट देती हैं ताकि वो अपने जो अपने एरिया में उनको सीट जितवा सके, भले ही प्यार से नहीं तो जैसे भी। देन पार्टी पॉलिटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिक्स में। पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है? डोमिनेंस ऑफ वन फैमिली इन अ पार्टी, समझ रहे हो? डोमिनेंस ऑफ वन फैमिली इन अ पार्टी। जैसे कांग्रेस पार्टी, इट हैज बीन डोमिनेटेड फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू टाइम। जवाहरलाल नेहरू बने, फिर उनके बाद उनकी इंदिरा गांधी बनी है, फिर राजीव गांधी बने हैं, है ना, तीनों लगातार बनते आ रहे थे। फिर पूरे चांसेस थे किसके बनने के? राहुल गांधी के, बट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस या जो भी रीजंस थे, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को ना बना के किसको बना दिया? मनमोहन सिंह को, ठीक है। अब इस बार अगर ये कांग्रेस और यूपीए जीत जाती तो पक्का राहुल गांधी जो है पीएम बनते। इसका इट मीन्स एक फैमिली पूरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है। आज वो पार्टी डाउनफॉल पर है। क्यों डाउनफॉल पर है? बिकॉज राहुल गांधी फेस बोल बोलकर उन्होंने मतलब, क्योंकि कांग्रेस में और भी तो चेहरे हैं जो एक्सपीरियंस थे, जो क्वालिफाइड थे, लेकिन उनको कभी भी पीएम के का फेस नहीं बनाया गया, हमेशा राहुल गांधी को। और राहुल गांधी शायद इतने जो भी है नहीं बनना चाहते, या खुद जो भी उनकी चीजें थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस में कोई ऐसा था ही नहीं लीडर जो कि पार्टी को आगे लेके जा सके। जबकि आप बीजेपी में देखिए तो वहां पे क्या है, कोई भी पार्टी का डोमिनेंस नहीं है, कोई भी पार्टी का डोमिनेंस में मिलेगा नहीं। मोदी जी है, उनकी फैमिली का पता ही नहीं है ना। मोदी जी सिंगल हैंडेडली, वो मतलब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है बीजेपी में, वो खुद अपना जो है काम करके, गुजरात में उन्होंने करके दिखाया, और गुजरात से पहले भी बहुत ही पुअर बैकग्राउंड है उनका, लेकिन वो गुजरात पॉलिटिक्स में आए, फिर वहां पर उन्होंने अच्छा काम किया, तब जाकर वो पीएम के कैंडिडेट बने। तो वहां पे जो भी लीडर ऊपर आता है, क्योंकि वहां पे कोई फैमिली सपोर्टिव नहीं है, कोई फैमिली का वो नहीं है वहां पे, आप अच्छा काम करेंगे तब आप जो है एनडीए या बीजेपी में ऊपर आ पाएंगे, नहीं तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो जब उन्होंने गुजरात में काम किया है, तब जाके वो पूरे इंडिया में एज ए पीएम कैंडिडेट उनको बीजेपी की तरफ से बनाया गया। काफी फेमस हो गए थे ना गुजरात में, पूरे इंडिया में भर में फेमस हो गए, तब जाके उनको बनाया गया, ठीक है। तो जहां भी पार्टी में एक फैमिली डोमिनेट करती है तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर आप दूसरे लीडर्स को आने नहीं, तो अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्होंने छोड़ दिया ना कांग्रेस, अब वो बीजेपी में आ गए। उन्होंने कहा कि हमें तो वही मौका ही नहीं मिलता है कांग्रेस में। तो कुछ सिलेक्टेड लोग, कुछ ऐसी पार्टीज हैं इंडिया में या वर्ल्ड में भी जिनकी जो फैमिली डोमिनेट करती है, कि एक फैमिली का मेंबर बन गया, बस वही अपने। अब सपा पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी यूपी में, समाजवादी पार्टी में क्या है, मुलायम सिंह ने स्टार्ट किया था उसको, तो वो सीएम रहे। उसके बाद किसको बना दिया? अखिलेश यादव को, है ना। अब अखिलेश यादव के बच्चे अगर उस काबिल होंगे तो वो बन जाएंगे। तो वहां पर भी किसी आउटसाइडर को मौका नहीं दे रहे, मतलब और पोस्ट पे दे देंगे, लेकिन जो सीएम कैंडिडेट होता है मेन पार्टी का, उसमें किसी आउटसाइडर, किसी को कोई ना कोई फैमिली मेंबर ही बनता है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं। Very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. और फिर फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में लोगों के सामने बहुत चॉइसेस नहीं है, सारी पार्टी जैसी हैं। मतलब देखो, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा देश सबसे बेहतर है इलेक्शन के मुकाबले। हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज भी लेके अगर चलें तो कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल में जब भी सरकार बनती है तो या तो कांग्रेस की बनती है या बीजेपी की बनती है। पब्लिक के सामने और कोई चॉइस है ही नहीं, है ना। अगर और चॉइस हो तब और बेहतर तरीके से सरकार काम, अगर थर्ड चॉइस आ जाए पब्लिक के सामने, तब और पार्टीज की जो है वो हो जाएंगे, उनके अंदर डर बन जाएगा
गैप तो 2 ही थे, अब तीसरा आ गया। अब अगर हमने और अच्छे से काम नहीं किया तो हमें पब्लिक पूछेगी नहीं, तो और कंपटीशन इंक्रीज होगा और सरकारें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। लेकिन अभी तीसरा फ्रंट हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं आया है। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties। वो आपको बता दिया, जो छोटी पार्टीज होती है, जो न्यू पार्टीज होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, वो बड़ी पार्टीज के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये है, these are the challenges to free and fair elections in India। तो your chapter is over now। इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा, व्हाट इज इलेक्शन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, देन टाइप्स ऑफ इलेक्शन, बाय इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, एंड देन what makes elections in India democratic and what are the challenges to free and fair elections in India। तो ये सारी टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।